ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में क्या है भाई? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कहा? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, working for the betterment of society, providing goods and services of quality at genuine price, maintaining relationship with employees with dignity and decency and paying them genuine wage rate, human objective for development, betterment of for betterment, development of human being, national objective of working for national priorities, नेशनल प्लान प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग काम करना। वो चेक कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्राइज। एन एंटरप्राइज फेसेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स in the form of its inception, a business organization, a business enterprise faces a number of problems from its inception through its lifetime till its closure. They may relate to problem of objective, location, size, physical facilities, finance, organizational structure. वीडियो भी पॉज हो रहा है बार बार। अरे दोनों एक साथ एक जगह क्यों आ जा रहे हो? फिजिकल फैसिलिटीज, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एटसेट्रा। आ रही प्रॉब्लम? ठीक है, अभी सर्वर वाले से बात कर रहे हैं, क्लास चल सकती है ना, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फिक्स्ड फैक्टर्स are those factors which quantity remains unchanged with the change in output within a capacity, and variable factors are those the quantity of which change with a change in the level of output. फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई? तो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो है जिसमें चेंज नहीं होता। शॉर्ट रन में आप फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच देयर विल बी एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? which cannot be changed with the level of output, and variable factors of production are those which can be changed as per the requirement with changes in output. मशीन फिक्स फैक्टर है, लेबर रॉ मटेरियल वेरिएबल फैक्टर है। Production function is the process of getting maximum output from a given quantity of input in a particular period of time. Production function क्या बताता है भाई? Maximum quantity of output
that can be produced with a given quantity of input. Production function establishes the physical relationship between quantity of input and quantity of output. It shows the maximum quantity of output that can be produced with a given quantity of input. It does not study the financial aspects of production. It establishes physical input-output relationship. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस नहीं करता. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बताया था? देयर विल बी सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर फिक्स्ड. शॉर्ट रन के लिए क्या कहा था? शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच देयर विल बी at least one fixed factor of production. Long run is a period of time in which every factor of production is variable. So short run where some factors are fixed in supply, long run where all factors are variable in supply. Law of variable proportions. There are three concepts of production. क्या? Total product, average product and marginal product. Total product क्या है भाई? It is the sum total of quantity of output produced with the given quantity of inputs. टोटल प्रोडक्ट के लिए हम ये भी कहते हैं इट इज समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि एक एक यूनिट से, हर यूनिट से जो सेपरेट आउटपुट मिल रहा है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है. तो मान लो 5 यूनिट है, पहले ने 10 बनाया, दूसरे ने 8 बनाया, तीसरे ने 15 बनाया, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट इज द total quantity of goods produced by a firm with the given inputs during a specified period of time. Total product is summation of marginal product. Average product is the amount of output per unit of variable factor employed. तो average product क्या होगा? Total product upon quantity of input. Marginal product is the change in total product resulting from the employment of one more unit of variable factor. Marginal product क्या होगा भाई? Marginal product क्या होगा? Change in total product upon change in quantity of input. वीडियो ठीक चल रहा है? हाँ जी, वीडियो ठीक चल रहा है? हाँ वीडियो ठीक है भाई, आप अपना नेटवर्क भी चेक करते रहना. मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए एक फॉर्मूला और भी था हमारा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट, वेयर n इज एनी गिवन नंबर. लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. टोटल प्रोडक्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को रेडी किया है समरी में. देन राइजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, रीचेज ए मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग. अब इससे आप मार्जिनल रिलेशनशिप को, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, वीडियो सही चल रहा है, साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम है, बिप की आवाज बीच में आ रही है. हम लोग सर्वर पे इसको लेके बात कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है. जैसा कि हमने बच्चों से पूछा कि क्लास कैन बी रन विद दैट साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास करिए. तो क्या बोला भाई? राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट राइज कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा. मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो टोटल प्रोडक्ट राइज करेगा विथ डिमिनिशिंग रेट.
मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो टोटल प्रोडक्ट फॉल करना शुरू होगा। Both average product and marginal product curves are graphically derived from total product curve. Both average product and marginal product curves are inverted U-shaped. पहले बढ़ता है, मैक्सिमम पे जाता है, घटता है। मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, मैक्सिमम पे जाता है, उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट उसके बराबर होता है, उसके बाद घटता है, तो उल्टा यू है, विच इज एज फॉलोज। अब भाई क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आएगा ये टॉपिक फिर से। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, या यूनिट्स ऑफ लेबर। ये टोटल प्रोडक्ट है। जिस समय तक इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके क्रॉसपॉन्डिंग मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। एवरेज प्रोडक्ट राइज करेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, उसके बाद फॉल करेगा। स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, सही है। हाँ जी, तो when average product is rising then marginal product is greater than average product। एवरेज प्रोडक्ट जब तक राइज कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। when average product is at its maximum then marginal product is equal to average product। when average product is falling then marginal product is less than average product। law of variable proportion states that when total output of a commodity is increased by adding units of variable factor while the quantities of other inputs are held constant, the increase in total product becomes after some point smaller and smaller। कैसे भाई, क्या हुआ ये? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? establishes the physical input output relationship। law says when one variable factor of production, other factors fixed, is added with other fixed factors of production, then marginal product of that variable factor of production must eventually decline। must eventually decline कहने का मतलब पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर घटेगा। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट के जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। जहां तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिमिनिश करता है, तो टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, टोटल प्रोडक्ट फॉलिंग होता है। द थ्री प्रोडक्ट कर्व्स आर ड्रॉन टू ग्राफिकली इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जो अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, सही है। हाँ जी,
The three stages are partitioned into increasing, diminishing, and negative return. Law of increasing return, law of diminishing return, and law of negative return. A rational producer will always operate in stage 2. Stage of operation क्या होता है? Stage 2. In this stage, both AP and MP are declining but positive. The reason for diminishing return is optimal use of fixed factors and imperfect substitutability between factors. Stage of increasing return का रीजन क्या था? फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर. वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज होगी. फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा. फिक्स फैक्टर के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी सफिशिएंट हो गई और उसके बाद वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. उस कारण से डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा. और नेगेटिव रिटर्न का कारण क्या है? क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज टू मच कंपेयर टू गिवन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन प्रोडक्शन प्रोसेस. द लॉ इज अप्लीकेबल इन शॉर्ट रन. लॉ कहां अप्लाई होता है? शॉर्ट रन में. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल लॉन्ग रन का लॉ है. क्या बताता है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम रेट से चेंज करते हैं. आउटपुट क्या होता है भाई? इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, कांस्टेंट रेट में बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है. When all factors of production are increased by a given proportion and output increases more than proportionately, increasing returns to a scale IRS. When all factors of production are increased by a given proportion, output also increases in same proportion, constant returns to a scale. And when all factors of production are increased by a given proportion and output increases less than proportionately, then decreasing returns to a scale. The three stages of the law of returns to a scale are increasing, constant, and decreasing. Reason behind increasing returns to a scale: economies of large scale production are powerful than diseconomies of large scale production. Economies of scale, which can be internal or external, division of labor, specialization of activities. Reason behind decreasing returns to a scale: diseconomies of large scale production are powerful than economies of large scale production. मतलब diseconomies is diseconomies of a scale which can also be internal or external. Constant returns to a scale: economies and diseconomies are counterbalanced. अब इसके बाद इसमें क्या था भाई? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन था, आइसोक्वेंट, आइसो कॉस्ट लाइन एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. इसको हमने यहां पे कवर नहीं किया है क्योंकि नॉर्मल जो हमारी स्टडी हुई थी उसमें हमने आपको पहले बता रखा था कि आइसोक्वेंट कैसा होता है? इंडिफरेंस कर्व की तरह. और आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है? बजट लाइन की तरह. आइसोक्वेंट और आइसो कॉस्ट लाइन से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दो तरह से एक्सप्लेन होता है. लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब आइसो कॉस्ट लाइन दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर वाई, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर एक्स. लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है प्रोड्यूसर का, मतलब आइसो कॉस्ट लाइन दिया हुआ है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा आउटपुट. तो प्रोड्यूसर की कोशिश होगी IQ 3 पे जाने की, लेकिन दिए हुए एक्सपेंडिचर में IQ 3 पे नहीं जा सकता है. तो मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस कर सकता है?
आइसोक्वेंट IQ2 के पॉइंट बी पे, तो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? आइसो कॉस्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आइसोक्वेंट। इसमें दूसरा एक केस अलग था इंडिफरेंस कर्व से कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना बनाना है, ये दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर Y, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर X, लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, मतलब आइसो क्वांट दिया हुआ है कि भाई मान लो आपको 100 यूनिट बनाना है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? कम से कम खर्चे में, तो लोएस्ट आइसो कॉस्ट लाइन पे जाना चाहेगा। अब आप देखो, मान लो ये P1 L1 है, तो प्रोड्यूसर इतने कम कॉस्ट में दिया हुआ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस पे प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन क्या इससे कम एक्सपेंडिचर में भी प्रोड्यूस हो सकता है? तो आंसर है यस। तो सबसे कम खर्च कहां लगेगा? जब लोएस्ट आइसो क्वांट पे होगा। लोएस्ट पॉसिबल आइसो क्वांट कौन सा है? PL कि कौन से पॉइंट पे? पॉइंट बी पे। तो यहां भी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेम है, आइसो कॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू आइसो क्वांट। थियरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट थियरी हेल्प्स टू डिटरमाइन सप्लाई कर्व। मार्केट में पढ़ा था भाई परफेक्ट कंपटीशन में, मार्जिनल कॉस्ट कर्व above average variable cost curve is also formed supply curve, helps to determine supply curve which together with demand curve determines equilibrium price and quantity। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को मिला के इक्विलिब्रियम आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस आउटले कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई? opportunity cost is the cost of alternative opportunity given up or foregone। opportunity cost क्या है? cost of next best alternative which is sacrificed or foregone। it is also called alternative cost or transfer earning। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, इसको आपने ए एक्टिविटी में लगाया, इस पैसे को बी में भी लगाया जा सकता था, सी में भी लगाया जा सकता था, तो बी और सी क्या है? अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस्ड। सही है। आउटले कॉस्ट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर्म। एक्चुअली पैसा आप कहां लगाते हैं वो आपका आउटले कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपने किताब खरीद ली, आउटले कॉस्ट है। उस 100 रुपए से आप कुछ खा पी सकते थे, तो खाना पीना आपने सेक्रीफाइस किया ना, ये आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इंप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है भाई? बाहर वाले को जो पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट जो बिजनेस का होता है। और ध्यान देना, इकोनॉमिक्स में हम डेप्रिसिएशन को भी कैश पेमेंट मानते हैं। एक बार 50,000 रुपया दिया, मशीन खरीदा, अलग अलग साल में उसको चार्ज करते हैं, तो अलग अलग साल में चार्ज करते उस 50,000 के अगेंस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फर्म इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट और मनी कॉस्ट। Implicit cost is the cost of factors owned by the firm and used by the firm in its own production process. It is also called imputed cost, notional cost। हमारा अपना फैक्टर हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं? अपने बिजनेस में यूज नहीं होता, हम उसे कहीं और यूज करते हैं। जैसे मान लो अपना पैसा अपने बिजनेस में यूज नहीं करते, बैंक में रखते, इंटरेस्ट मिलता, तो उतना इंटरेस्ट हमारे बिजनेस को भी देना चाहिए। अपनी सर्विसेज हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, अपने बिजनेस में ना लगा के कहीं और लगाते, तो वहां से हमें पेमेंट मिलती, वेजेज मिलता, सैलरी मिलता, वो वेजेज सैलरी हमारे बिजनेस को हमें देना चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब ध्यान देना, आ जाएगा ऐसे आगे।
इकोनॉमिक्स में जो टोटल कॉस्ट होता है उसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसी को अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अकाउंट्स के अनुसार कॉस्ट यही होता है। आगे आएगा डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मतलब ट्रेसेबल कॉस्ट, कॉस्ट क्यों लगा है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के कारण, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कारण जो कॉस्ट लगा है उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे मान लो हमारे पास है मटेरियल एक्स और हमारे पास है मटेरियल वाई। मटेरियल एक्स केवल और केवल प्रोडक्ट ए में यूज होता है, लेकिन मटेरियल वाई प्रोडक्ट एक्स में भी यूज होता है, वाई में भी, सॉरी, प्रोडक्ट ए में भी यूज होता है, प्रोडक्ट बी में भी यूज होता है, प्रोडक्ट सी में भी यूज होता है, और सेग्रीगेट करना भी मुश्किल होता है कि इसमें कितना लग रहा है। तो एक्स क्या हुआ? डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट ए, डायरेक्ट कॉस्ट। और वाई क्या हुआ? इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। तो ऐसा खर्च जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बेनिफिट दे रहा है और उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो किसके कारण कितना लग रहा है, इनडायरेक्ट नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कारण लगा उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी ट्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट। अभी बताया ना अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। सही है? अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक्चुअल कैश पेमेंट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपना मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जोड़ लिया है तो टोटल रेवेन्यू यदि इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर है तो क्या होता है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में हमने क्या जोड़ा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पहले से जोड़ के रखा है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट होता है, आपके बिजनेस डिसीजंस के कारण होता है, रेफर्स टू एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन। जैसे कोई नया मशीन लेना है, कोई नया ब्रांच स्टार्ट करना है, कोई नई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करनी है। संक कॉस्ट, ये बिजनेस में लग गया, यदि आप उस बिजनेस में बने रहेंगे तो उसका फायदा होगा और नहीं तो डूब गया। आर ऑलरेडी इनकर्ड वंस एंड फॉर ऑल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड और रिवर्स्ड। जैसे मान लो एक नया प्रोडक्ट आपको बनाना था, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपने खर्च किया, बाद में आपको लगता है यार ये प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो खर्चा भी जो लग चुका है वो डूब गया और रिकवर नहीं हो सकता। मान लो एडवर्टीजमेंट के लिए आपने पेमेंट कर दिया और वो प्रोडक्ट मार्केट में बाद में लेके नहीं आ रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट डूब गया, उसको रिकवर नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट में कोई एसेट परचेज किया था कितने का, पास्ट में कोई एसेट परचेज किया था कितने का। मान लो आज 2020 है भाई, कोरोना ईयर, कोरोना इफेक्ट ईयर, कोरोना क्रिएट हुआ 19 में, इफेक्ट डाल रहा है 20 में। अब मान लो 2015 में आपने कोई मशीन खरीदा था 50,000 का, आज उसका प्राइस है 60,000, तो ये 50,000 क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ये 60,000 क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज पुराने मशीन की जगह पे नया मशीन लेके आओगे तो कितना लगेगा? 60,000। नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है उसका रीजन होता है इन्फ्लेशन, प्राइस राइज। हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट। आज कितना लग रहा है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में डिफरेंस का रीजन प्राइस राइज, इन्फ्लेशन। Normally, I am using the word normally. Replacement cost is higher than historical cost.
प्राइवेट कॉस्ट, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेरे जो खर्चे हैं वो प्राइवेट कॉस्ट है, आर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड और प्रोवाइडेड बाय फर्म एंड आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सोशल कॉस्ट, सोसाइटी, तो भाई ये सोसाइटी है, इसमें हमारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा जो कॉस्ट है वो सोसाइटी का है ना, मैं सोसाइटी से बाहर थोड़ी हूं। लेकिन आप बिजनेस करते हैं तो इससे सोसाइटी को कुछ डिसयूटिलिटीज भी होता है, डिसयूटिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, सही है, refers to total cost borne by the society on account of business activity and includes private cost and external cost. Short run cost, शॉर्ट रन में कॉस्ट की एनालिसिस हम दो कैटेगरी में करते हैं, एक टोटल कॉस्ट और एक एवरेज कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट क्या होता है, याद करिए भाई, शॉर्ट रन में क्या बताया था, एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट which is constant irrespective of level of output produced। भाई दीपांशु, हमने क्या कहा है कि नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होता है, डिफ्लेशन होगा तो कम हो जाएगा, डिफ्लेशन होगा तो कम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, चीजों की कीमतें बढ़ती है। अब क्या है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट इज ए कांस्टेंट अमाउंट, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट जीरो होगा तब भी उतना ही होगा और कैपेसिटी में मैक्सिमम होगा तब भी उतना ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड वेरीज, वेरिएबल कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, नो प्रोडक्शन नो वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कर्व इनवर्स एस शेप्ड कर्व होता है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज करता है डिमिनिशिंग रेट से, थोड़े समय कांस्टेंट, और जब स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। टोटल कॉस्ट कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट and will have identical shape as per total variable cost curve, because by adding variable cost of each level of output in total fixed cost, which is a constant amount, we get total cost of that level of output. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी कैसा होगा, इनवर्स एस शेप्ड कर्व बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सही है। टोटल कॉस्ट इज इनवर्स एस शेप्ड कर्व, inverse S shaped curve from the level of fixed cost, total fixed cost curve horizontal line parallel to x axis, total variable cost curve inverse S shaped curve starting from the origin। इसके अलावा शॉर्ट रन में दो और कॉस्ट पढ़ते हैं हम, एक होता है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है हमारा स्टेयर स्टेप कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब the cost which is neither totally fixed nor totally variable. Cost has a fixed part and a variable part. Fixed part remain constant irrespective of level of output produced and variable part varies directly with the level of output produced. तो इसको क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हो गया, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें ये क्या है, फिक्स पार्ट है, ये क्या है, वेरिएबल पार्ट।
फिक्स पार्ट है और ये क्या है, वेरिएबल पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स पार्ट, मीटर चार्ज, मीटर रेंज, वेरिएबल पार्ट डिपेंडिंग अपॉन यूज। मंथली टेलीफोन बिल, यूज करो चाहे नहीं करो एक सर्टेन अमाउंट आएगा, उसके बाद यूज पे डिपेंड करता है। स्टेयर स्टेप कॉस्ट क्या होता है भाई, स्टेयर स्टेप कॉस्ट क्या होता है, स्टेयर स्टेप कॉस्ट क्या होता है, स्टेयर स्टेप कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो एक रेंज ऑफ आउटपुट के लिए कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जैसे ही आउटपुट बढ़ता है कॉस्ट सडनली हायर लेवल पे जाता है, फिर अनदर रेंज के लिए कांस्टेंट होता है, फिर जैसे ही आउटपुट बढ़ता है सडनली जंप करता है, अनदर रेंज के लिए आउटपुट रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको क्या कहते हैं, स्टेयर स्टेप कॉस्ट। हाँ जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट which have a fixed element and a variable element. Stair step cost which remain fixed over a certain range of output and suddenly jump to a higher level when output goes beyond a given limit and become constant for next range of output. क्लियर है यहां तक? शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट तो क्या क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब टोटल फिक्स कॉस्ट आपका क्या है, कांस्टेंट अमाउंट है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता जाएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होगा, downward sloping throughout its length, it will be like a rectangular hyperbola. Average variable cost is variable cost per unit of output. Average variable cost हमारा U-shaped curve होता है because of operation of law of variable proportion. It is a U-shaped curve due to law of variable proportion. Average cost या इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, ये क्या होता है, इट इज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा क्या होगा भाई, एवरेज टोटल कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट के लिए क्या लिख सकते हो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट विल आल्सो बी a U-shaped curve because of operation of law of variable proportion. Average cost is also called average total cost. It can be obtained by two ways. Average total cost equals to total cost upon quantity of output, या एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज यू शेप्ड कर्व, द रीजन बिहाइंड इट्स शेप इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या होगा भाई, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इज द एडिशन इन टोटल कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में क्या होता है, टोटल कॉस्ट में क्या होता है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होगा किसके कारण, वेरिएबल कॉस्ट के कारण, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट के लिए कहते हैं इट इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। When one more unit of output is produced, addition made to total cost or total variable cost as a result of production of one more unit of the output. Marginal cost कैसे निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं भाई, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स
minus total cost of 1 minus n minus 1 unit. मार्जिनल कॉस्ट के लिए आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. मार्जिनल कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व. किसी भी टोटल कॉस्ट का स्लोप उसके मार्जिनल के बराबर होता है. टोटल यूटिलिटी कर्व मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्ट कर्व का स्लोप मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट कर्व का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू. At each and every point, marginal cost curve is U-shaped, reflecting law of variable proportion. ये यहां दोबारा आ गया है. Marginal cost is independent from total fixed cost. It is function of variable cost and can also be calculated as relationship between average and marginal cost. बताया था. ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट का जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेशन होता है, लॉन्ग रन में वही एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में सारा का सारा कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट. व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग, marginal cost is also falling with a higher rate. Marginal cost is below it, that is marginal cost is less than average cost. When average cost is rising, मतलब average variable cost is rising, marginal cost is above it. Average variable cost rise कर रहा है तो marginal cost क्या है, उसके ऊपर है, तो marginal cost is greater than average cost, average variable cost. When average cost is minimum, marginal cost is equal to average cost. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दो तरह से हमने पढ़ा था, प्लांट कर्व और प्लानिंग कर्व. प्लानिंग कर्व को इन्वेलप कर्व भी कहते हैं. वह इन्वेलप लिखे जो खत तुझे. हाँ जी. सो डोंट यूज खत, ऑलवेज यूज SMS, व्हाट्सएप और इवन टेलीग्राम with delete facility in your mobile or having the security code. तो क्या कहा भाई, प्लांट कर्व एनालिसिस कब होता है, जब टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन होता है. और प्लानिंग कर्व क्या होता है, जब टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन नहीं है, हर एक लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में सेपरेट प्लांट अवेलेबल है. तो हम यहाँ पे मेनली प्लानिंग कर्व को देख रहे हैं. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एन इनवेलप कर्व. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व. It envelops infinite short run average cost curve. अब infinite short run average cost curve होता है भाई, infinite short run average cost curve होता है, लेकिन ऑप्टिमम एक ही होता है. सही है. Each point on long run average cost gives the minimum cost per unit for corresponding level of output. याद करिए, हमने बताया था आपको क्लास के डिस्कशन में, क्या क्लास के डिस्कशन में बताया था कि क्रॉसपॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट के लिए मिनिमम कॉस्ट, क्रॉसपॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट के लिए मिनिमम कॉस्ट कौन सा है. सही है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज U-shaped कर्व बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है भाई, U-shaped कर्व होता है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व L-shaped कर्व होता है, टिल्टेड L. सही है. अच्छा, अनुभव कुमार साई बोल रहे हैं कि सर कोई होना भी तो चाहिए वो खत और SMS व्हाट्सएप के लिए. तो अभी तक क्या कर रहे हैं भाई, केस डाउटफुल हो रहा है क्या. According to modern approach, long run average cost curve is L-shaped curve because
modern approach believes technological advancement is possible during production process over the period of time. Economies of scale are of two types: external economies of scale and internal economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा, इंटरनल एक्सटर्नल, जो हमारे कंट्रोल में इंटरनल, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्रू टू ए फॉर्म ड्यू टू फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू ए फॉर्म, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी के कारण जो होता है. इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्रू टू ए फॉर्म व्हेन इट एंगेजेज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन. Internal economies arise to a form due to its own functioning. Increase in scale beyond optimum level results in diseconomies of scale. एक लेवल तक प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक लेवल के बाद डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. सही है भाई? तो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3. इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3 में हमें यही डिस्कस करना था. सही है? चैप्टर 3 हमारा इतना ही था जो हमने रिवीजन में कवर किया है. बेसिकली कवर क्या किया हमने, तो सारे पॉइंट्स जो रेगुलर क्लास में हमने डिस्कस किया था उसको समरी में देखा है. आपको क्या करना है, एक बार डिटेल रिवीजन करना है और उसके बाद ये समरी वाली रिवीजन भी करेंगे तो आपका काम होता जाएगा. ठीक है? 5-7 मिनट का ब्रेक लीजिए. इस 5-7 मिनट के ब्रेक में हम थोड़ा चेक भी करते हैं साउंड में बिप जो आ रहा था उसके बारे में. अच्छा, हाँ जी. तो उसके बाद उस चीज को चेक भी करते हैं और फिर मार्केट चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करेंगे. थैंक यू.